تو خدا کے حضور ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام سے آج کی پہلی تلاوت کو سنیں گے۔ میں نئے عہد نامہ سے مقدس پالوس رسول کا خط یعقوب کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت سے لے کر 18ویں آیت تک خدا کے حضور بیٹی سے درخواست کروں گا بیٹی مقدس سامنے آئے اور خدا کے حضور آج کی پہلی تلاوت کو ادا کرے۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت یعقوب 3 باب اس کی 13 سے 18 آیات تک۔ تم میں دانا اور فہم کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حمل کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنیاوی اور نفسیانی اور شیطانی ہے۔ اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ پھر لانثار حلیم اور تربیت پذیر رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی بے طرف دار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت سے سامنے۔ مقدس کلام کو سنیں گے۔ آج کی دوسری تلاوت پرانے عہد نامہ میں سے ایوب نبی کا صحیفہ اور اس کا 28 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 23 آیت تک۔ جن کے پاس خدا کا زندہ اور مقدس کلام ہے وہ کھولیں۔ ایوب کی کتاب، اس کا 28 باب اور اس کی 12 سے لے کر 23 تک۔ میں بھائی ایمانویل سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئے اور خدا کے حضور آج کی دوسری تلاوت کو ادا کریں۔ خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے پرانا عہد نامہ میں سے ایوب کی کتاب 28 باب 12 سے 23 آیت تک۔ لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی سرزمین میں ملتی ہے۔ گہرو کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں۔ نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے ملے گی، نہ اس کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم، نہ سونا نہ کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں۔ نہ چوکے سونا کے زیور اس کے بدلے ٹھہرے گے، مونگ اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے، نہ گوشہ کا پخراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ جس حال میں وہ سب زندوں کی آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندے سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہلاکت اور موت کہتی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے اس کا افواد تو سنی ہے۔ خدا اس کی راہ کو جانتا ہے۔ اور خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام کو آج ہم سنیں گے۔
नॉलेज विदाउट विस्डम, क्योंकि इल्म के बगैर हिकमत को हम जानेंगे कि अगर इल्म है तो हिकमत नहीं है। क्या आज हम खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम से इस बात को जानेंगे कि क्या हमारे अंदर इल्म है? क्या अगर इल्म है तो फिर हिकमत भी इसके साथ ज़रूरी है, और हिकमत हमें असर कर रही है कि नहीं? खुदा के हुजूर मैं देखता हूँ कि वो बहुत सारी बातें जो पुराने वक्तों में लोग 40-50 साल गुजरने के बाद समझते थे और जानते थे, आजकल वो बातें बहुत जल्द ही 12, 13, 14 साल की उम्र में इंटरनेट से रिसर्च करके हासिल की जा रही हैं, और समझते हैं कि हम बहुत रिसर्च कीपर हैं और हमने खुदा के कलाम को रिसर्च कर लिया है, हमें बहुत सारा इल्म आ गया है और हम खुदा के हुजूर हमेशा बड़ा इल्म रखते हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इल्म को हमेशा जानने से या दौलत का आ जाने से इसका हिकमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हम देखें कि बहुत सारे अमीर घरानों के जो बेटे और बेटियां हैं वो एक बड़े महंगे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और उनकी तालीम और उनका तमाम आना जाना भी अलग अलग होता है, और एक गरीब आदमी के बेटे और बेटी से उनकी तालीम भी अलग होती है। और इसी तरह हम अगर देखते हैं कि खुदा का बंदा सुलेमान नबी, जिसको शहजादों की तरह पाला गया और शहजादों की तरह रखा गया और उसको बड़ी तालीम इल्म से नवाजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर हिकमत की कमी थी कि नहीं? कमी थी, क्योंकि उसके पास इल्म ज़रूर था, लेकिन फिर भी खुदा से उसने किस चीज़ को मांगा कि मुझे हिकमत अता कर। खुदा के हुजूर हम देखते हैं कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्रियां रखते हैं और इस बात पर हमेशा भरोसा रखते हैं कि हम बहुत इल्म को जानते हैं और बहुत समझदार हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हम समझदार नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक खुदा के हुजूर हम खुदा की हिकमत को नहीं मांगते। खुदा के कलाम मुक़द्दस में अयूब नबी के सहीफ़े को हमने पढ़ा, और अयूब नबी का सहीफ़ा पढ़ते हुए अयूब सवाल करता है कि लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी? जिस तरह असी कहने कि यह चीज़ कित्थों मिलेगी, किहड़ी दुकान तो मिलेगी। अयूब खुदा का बंदा सवाल कर रहा है कि खुदा से कि हिकमत कहाँ से मिलेगी। डेफिनेशन उसकी क्या कर रहा है कि और खिरद की जगह कहाँ है, ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना तो वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है, गहराव कहता है वो मुझ में नहीं है। अगर जिंदों की ज़मीन पर भी हिकमत नहीं है, और इस ज़मीन पर जितने भी लोग रह रहे हैं जिसको जिंदों की ज़मीन कहा जाता है, और गहराव जो अंधेरा है, अब वो कह रहे हैं कि हिकमत हमारे पास नहीं है। खुदा का बंदा अयूब इसके बारे में सवाल कर रहा है कि अगर जिंदों की ज़मीन पर भी नहीं है, अगर गहराव कह रहा है कि मेरे पास भी नहीं है, तो फिर हिकमत गई कहाँ, और हिकमत कहाँ से मिलेगी? खुदा के हुजूर दनाई की बातें कहाँ से मिलेगी? क्योंकि खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दनाई जब शुरू होती है तो लिखा है कि जब खुदा का खौफ हमारे दिल के अंदर आ जाता है तो हम दनाई से मामूर होते हैं। खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि एक बड़ी लंबी लिस्ट अयूब लिखता है कि समंदर भी कहता है कि हिकमत मेरे अंदर नहीं है। लिखा ना चांदी उसकी कीमत, ना अफेर का सोना जो खुदा ने अदन के वक़्त बनाया, और उस अफेर के सोने को बड़ी तरजीह हासिल है, ना वो कहता है कि मेरे पास हिकमत है, कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम, वो भी कहते हैं कि हमारे पास हिकमत नहीं है।
ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसके बदल ठहर सकते हैं। कि अगर हम कहें कि बहुत सोने के जेवरात से हम हिकमत को ख़रीद लेंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। लिखा कि मूंगे और बलौर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से भी बढ़कर है। ना कोश का पखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मूल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है? जिस हाल के वो सब जिंदों की आँखों से छुपी है और हवा के परिंदों से भी पोशीदा रखी गई है। अगर हम देखें कि ज़मीन पर भी हिकमत नहीं है और परिंदों से भी पोशीदा रखी गई है, एक लंबी लिस्ट है हमारे पास के पत्थरों के अंदर भी नहीं है, तो फिर हमें हिकमत कहाँ से मिलेगी? सब चीज़ों का जिक्र किया है। सारी दुनिया मादी चीज़ों के पास हमेशा भाग कर जा रही है और दुनिया तमाम चीज़ों के पीछे भाग रही है, सोने के पीछे भाग रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि वो कहते हैं कोई अक्लमंद हो जाए, लेकिन मैंने देखा कि बहुत अक्लमंद भी आदमी इस ज़मीन पर हैं। बहुत सारे कचहरियाँ चले जाओ तो उत्थे बड़े तेज तरास और बड़े अक्लमंद एक दूसरे ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ और बड़ी जल्दी नाल बंदे ਨੂੰ फसा के ले आउणगे कि मैं बड़ा दना और दानिशमंद हूँ। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उन्होंने डेरे बना रखे हैं और डेरे के ऊपर जब जाते हैं वहाँ पर दनेवी तौर पर फैसले करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग उनके सेक्रेटरी और सदर और नौकर चाकर मौजूद होते हैं और हम समझते हैं कि ये बंदा बड़ा दनावा। लेकिन खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर देखें तो लिखा है कि कोई दौलतमंद जो है वो हिकमत को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा था तो सुलेमान के पास मरास में उसके माँ बाप से बहुत सारी दौलत थी, सब कुछ था, वो ऐशो इशरत से रहता था। लेकिन खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम उसका ज़िक्र पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने कहा कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे खुदावंद ऐसा कर कि मुझे हिकमत अता कर। खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम कई दफ़ा देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात पर भी अड़े रहते हैं, वो आंदे ने कि नहीं मेरी गल मेरा ही फैसला, जो मैं गल कह देती है ये इसी तरह होएगा। हिकमत की बातों को हम समझते नहीं है कि हिकमत किस तरह से हमें काम करेगी और खुदा के हुजूर हम हिकमत कहाँ से आएगी। अयूब खुदा का बंदा सवाल करता है कि हिकमत कहाँ से आएगी। हम खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से जब हम पढ़ते हैं कि याकूब का ख़त, हमने उसकी 12वीं आयत में पढ़ा लिखा कि तुम में दना और फ़हीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिलम के साथ ज़हर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक़ के ख़िलाफ़ ना शेखी मारो ना झूठ बोलो, ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है। अब पता चला कि हिकमत कहाँ से आती है, हिकमत का तल्लक कहाँ से है। हिकमत ना तो इल्म से आती है, हिकमत ना बहुत सारी दौलत रखने के सबब से आती है, हिकमत ना चोखा सोना रखने से आती है। कई आपने लोग देखे होंगे कि वो अपने ना कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सुलेमान से हिकमत से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है। और खुदा का बंदा यूब लिखता है कि कोई पत्थरां च भी हिकमत नहीं हैगी। कई लोग बड़ियां छापां पाते ने, मेरे भी पाई हुई है पर मैं इसलिए नहीं पाई, ज़रा इस बारे में समझाने लिए अज ना कलाम मुक़द्दस के मुताबिक लिखा कि वो कहते हैं कि ऐ पाला फिर तेरे सते ही खैरा, फिर बहुत सारी तेरू दौलत आ जाएगी, तू पा के जिदे सामने जाएगा वो गुस्से च नहीं बंदा रहेगा। लेकिन हिकमत इन पत्थरों के अंदर खुदा का कलाम लिखता है कि नहीं है। बहुत सारे लोग नजूमियों के पास जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी गेमों के अंदर तलाश करते हैं हिकमत को।
खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि लिखा है कि ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। 3 तरह की हिकमतों का यहाँ पर जिक्र है कि ये हिकमत जो हम सोचते हैं, जिसमें हसद है, फसाद है, गुस्सा है, ये हिकमत कहाँ से आती है? ये आसमान की तरफ से नहीं है, ये दुनियावी हिकमत है। ये दुनिया की हिकमत को हम सामने रखते हैं। और कलाम मुक़द्दस लिखता है कि नफसानी फना करने वाली ऐसी हिकमत भी मौजूद है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो गांव के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बहुत बड़ा जाल लगाते हैं कि ऐस बंदे नू फसाइए, ए बंदा बहुत तरक्की कर रहा है, ए बंदा किसी गल विच आण के आयत पढ़ रहा था और उस कलाम मुक़द्दस में नहीं बल्कि लिखा कि दुआ करने की कीमत कम है, लेकिन दुआ ना करने की कीमत बहुत ज़्यादा है। शायद आपने मेरे से पहले भी ये सुनी हो, दुआ करने की कीमत कम है, लेकिन दुआ ना करने की कीमत बहुत बड़ी आपको चुकाना पड़ेगी। जब आप दुआ करते हैं तो इब्लीस आपके पास, डेविल नहीं आएगा और वो दूर रहेगा। लेकिन जब आप दुआ नहीं करते, उसकी कीमत क्यों बड़ी है? इसलिए कि आपके 10 और 20 साल तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे, बड़े अच्छे गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद इब्लीस आपके इतने टुकड़े करेगा कि आप जगह जगह दुआ करवाते रहेंगे, लेकिन आपको फिर आराम नहीं आएगा। इसलिए दुआ करना ज़रूरी है ताकि आप थोड़ी सी कीमत झुका कर, लोग इस तरफ आते नहीं हैं, लोग खुदा के कलाम की तरफ नहीं आते और खुदा के कलाम मुक़द्दस को अफजल नहीं जानते, लोग चर्च नहीं आते, खुदा को नहीं मानते। उन्होंने भी किए अपनी हिकमत बनाई, अपनी हिकमत नाल काम करी जाते। नहीं जी पारी साहब, मैं सोचा सी कोई गल नहीं, इस तवार नहीं तो चल मैं अगले तवार जरूर आवांगा। अपनी हिकमत से सोचा हुआ था, अपनी हिकमत से अपने कामों के मतलब सोचा हुआ था। खुदा की हिकमत ये नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि इंसान के अंदर ऐसी हिकमत जो काम करती है वो इब्लीस की तरफ से है और वो उसका तल्लक इब्लीस से है और शैतान से है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। अब जो शैतानी हिकमत है उसके अंदर फसाद और क्या होता है? बुरा काम ही होता है। अगर तो किसी घराने के अंदर, किसी कौम के अंदर, किसी जगह के अंदर फसाद हो रहा है तो फिर हिकमत कित्थों दी है? खुदा दी तरफों कि शैतान दी तरफों? बोले तो सही, सोच नहीं गए। फिर शैतान की तरफ से है ना कि अगर फसाद कहाँ पर हो रहा है और अगर हर एक को लिखा कि बुरा काम अगर हो रहा है तो फिर यह हिकमत कहाँ की तरफ से है? शैतान की तरफ से, शैतानी हिकमत है। सो क्या हम खुदा के हुजूर से ऐसी हिकमत को सुलेमान की तरह मांगेंगे कि आए खुदावंद तो हमें अपनी हिकमत अता कर? नहीं, हम ऐसी हिकमत को लायक नहीं करेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक है। हालेलुया। खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम के मुताबिक जिस इंसान के पास हिकमत खुदा की तरफ से होगी, पहली बात कि लिखा है कि वो जो ऊपर से हिकमत आएगी वो क्या होगी? सबसे पहले पाक होगी। आप जिस आदमी के अंदर हिकमत को देखते हैं, जिस आदमी को आप बड़ा दना समझते हैं, सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर हिकमत अगर तो ऊपर की तरफ से है तो फिर वो बड़ा पाक साफ बंदा होएगा। अगर दुनियावी तरफ, नफसानी तरफ, शैतानी तरफदारी से हिकमत है तो फिर उसके अंदर खुदा की हिकमत नहीं बल्कि इब्लीस की तरफ से है और इब्लीस ने उसको जकड़ा हुआ और उस हिकमत को उसने हमेशा रखा हुआ है ताकि वो लोगों को डरा कर, धमका कर और किसी तरीके से अपनी इज्जत करवाए। बंदे दे कोल गड्डी होवे बड़ी महंगी,
ਅੱਜ ਘੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ और बंदा कोई उन्हें सलाम ही ना करे, यह भी तो कोई हिकमत नहीं ना। जो हिकमत ऊपर से आएगी सबसे पहले वो क्या होगी? पाक होगी। और जो हिकमत पाक होगी वो आपकी खुद ब खुद लोग इज्जत करेंगे। वो खुद कहेंगे नहीं ये बंदा चंगा है, वो खुद कहेंगे कि नहीं इन्हें कोई कभी गल नहीं की थी। लेकिन जो हिकमत इब्लीस की तरफ से होगी, शैतान की तरफ से होगी, वो हिकमत आपको हमेशा फसाद और बुरे काम की तरफ ले जाएगी। फिर लिखा है कि जो हिकमत ऊपर से आएगी, पहली बात वो पाक होगी, फिर मिलनसार होगी। फिर की करेगी? मिलनसार होगी। अच्छा मेरे नाल भी है कि मैं भी दुनियादारी में रह रहा हूँ। कई दफ़ा हम फैसला करते कि नहीं परा छड्डो, असी नहीं उन्होंने मिलना। लेकिन खुदा का कलाम लिखता है कि जो हिकमत आपके अंदर आएगी खुदा की तरफ से, वो क्या होगी? मिलनसार होगी, वो मेल मिलाप रखेगी। लेकिन असीं आंदे नहीं पिछले साल इन्हें बड़ा साढ़े नाल गलत किया सी, इन्हें मैनू गालां कड्डियां सी, मैं नहीं इन्हूं मिलना, मैं तेनू बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहता, मैं इन्हूं मूँह ही नहीं लाना। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है कि जो हिकमत ऊपर से आएगी वो पहले पाक होगी, वो आपको पाकीज़गी के अंदर लेकर जाएगी। और दूसरी बात उसके अंदर ये होगी कि वो मिलनसार होगी, वो मेल मिलाप रखेगी। अगर हम देखें कि तीसरी बात फिल्म और तरबियत पजीर होगी, वो तरबियत पजीर होगी और तरबियत को हमेशा जानेगी। तरबियत आजकल के दौर में, कल मेरे साथ यहाँ पर एक बंदा चर्च के अंदर बैठा था, वो मेरे पर सवाल कर रहा था कि पारी साहब आजकल के बच्चे क्यों नहीं समझ रहे? पहले साढ़े माँ बाप 10 गल्लां कहंदे सी ते असीं जरूर 4-5 उन्हां ते अमल ज़रूर कर रहे। हुण क्यों नहीं लोग समझ रहे? किस लिए बच्चे नहीं समझ रहे? क्योंकि हिकमत खुदा की तरफ से नहीं है। इस हिकमत को जो हम लाइक कर रहे हैं, जिस हिकमत में हम दाखिल हुए हैं, जो हमारे बच्चे दाखिल हुए हैं, ये नफसानी, दुनियावी और शैतानी हिकमत के अंदर हम और कहते हैं कि नहीं तेनू की पता, मैं नेट तो सारा कुछ सर्च कर लिया, तू तो क्लासा ही नहीं कीतियां, तू पढ़िया ही नहीं, मैनू पूछ के वेख, मैं नेट ते वेखना है। वो देखे कि मैंने देखा है कि लोग बहुत अपने अंदर इस शैतानी हिकमत, दुनियावी हिकमत की वजह से बहुत समझदार बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के साथ उसका सेक्रेटरी है, मशीर है, बहुत सारे उसने ऐसे लोग रखे हुए हैं, उनकी एक पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर चीचा वतनी जाएँ तो वहाँ पर रेडी वाले पर सवाल करे तो आंदा नहीं वज़ीर आज़म नूं इंज करना चाहिए। अपनी हिकमत से वो फैसला कर रहा है, जबकि खुदा ने उसको वहाँ पर बैठाया है और उसके साथ उसकी टीम को भी दिया है। वो हमेशा खुदा के हुक्म के मुताबिक उस चेयर पर बैठा फैसला कर रहा है। लेकिन रेडी वाले की जरूरत कि वह कहे कि नहीं वज़ीर आज़म नूं इंज करना चाहिए। कुछ लोग फिर एवें पर्चियां पाते रहते, कुछ लोग गेमां खेडते रहते, कुछ लोग इंटरनेट पर लगे रहते, कुछ जाली अकाउंट बना के लोगों के पैसे ठगते रहते हैं, कुछ लोग ठगी मार के अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग नाजायज़ नफ़ा लेकर दौलत को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर आप हिकमत को पुकारेंगे तो लिखा है कि जो मुझे पुकारेंगे वो पा लेंगे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमने सिर्फ ये आयत ही सुनी है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, हमें ये मालूम नहीं होता कि हमने मांगना क्या है। असी मंगने कि खुदा मंदा 3 मरले का कितने घर हो जाना, 2 कोठे होने चंगे जे हो जाए, बस जिंदगी सुकून की जरा लंघ जाए। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हिकमत कहती है कि तू अगर मुझसे मोहब्बत रखेगा तो तू मुझे पालेगा और मैं तेरे से मोहब्बत रखूँगी। और इसके बाद लिखा है कि दौलत और इज़्ज़त मेरे साथ है। फिर आपकी लोग फिर इज़्ज़त करेंगे, फिर आपको दौलतमंद हमेशा बनने की ख्वाहिश नहीं रहेगी, क्योंकि आप हिकमत के अंदर हैं। और हिकमत जो आपके पास आई है वो खुदा की तरफ से है। खुदा को कहे कि खुदावंद तू मुझे हिकमत अनायत कर, खुदावंद तू वो मुझे हिकमत दे जिसके साथ दौलत है।
तो ऐसी हिकमत जब खुदा की तरफ से आएगी वो सबसे पहले आपको पाक करेगी और खुदा आपको ऐसी हिकमत से नवाजे, क्योंकि सारे खुदाने जो हैं हिकमत के वो यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। और यीशु मसीह हिकमत, इत्मीनान, हर चीज़ का सरचश्मा है। अगर हम बहुत बड़ा घर बना लेते हैं, बहुत सारे पैसे लगा लेते हैं और उसमें जब रहते हैं तो हमें इत्मीनान नहीं, हमें खुशी नहीं, तो हमारा उस दौलत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम हिकमत से खुदा से हिकमत मांगेंगे, हिकमत के वसीले से हम खुदा को कहेंगे कि खुदावंद वो हिकमत अता कर जो तूने अपने बंदा सुलेमान को दी। खुदावंद वो हिकमत अता कर जो ऊपर से आती है, वो हिकमत अता कर जो पाक है, वो हिकमत अता कर जिसमें फसाद नहीं है, वो हिकमत खुदावंद अता कर जो खुदावंद तू देता है लोगों को, तो उसके साथ दौलत भी आपके घर में जाएगी। पता नहीं, लोग कहते हैं कि पारी साहब दुआ तो करो, बहुत कमाने हैं लेकिन पता नहीं चलते पैसे किधर जाते हैं, किधर जाने हैं पैसे। कलाम मुकद्दस में लिखा कि आपने हिकमत को नहीं मांगा। हिकमत को किसी ऐसे बंदे को फड़ा दियो, लाख रुपया फड़ा दियो, वो करेले गोश्त खा खा के उस दौलत को की करेगा, ख़त्म कर देगा। बहुत सारे लोग ऐसे दौलत को ज़ाया कर रहे हैं, वो अपने बचत नहीं करते। बाहर ला जाओ ज़रा 2 मिनट बाजी, बाहर ला जाओ। वो अपनी दौलत को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी दौलत का हमेशा इस्तेमाल उनके पास नहीं है, क्योंकि हिकमत नहीं है कि पैसे लाने की तरह। बहुत सारिया बीबियां तुसीं देखिया होना घर च, वो कहंदियां कोई गल नहीं, गवांढियां ने कश्यप कोलों पैसे ले, तू भी ले ला। अपने ऊपर उनके ऊपर कर्ज है, उनके ऊपर किस्तों का कर्ज है, बैंक का कर्ज है, बहुत सारे ऐसे कर्जे हैं। फिर वो बहुत ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उनके अंदर हिकमत की कमी है। उन्होंने दनीवी लिहाज से फैसला किया है। मैं बहनों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि कर्जे तो बचो और अपने बंदे नू, अपने भरा नू, अपने माँ बाप नू ना क्या करो कि कर्जा लै लो। कश्यप वाले दे रहे ने, लै तो लोगे, मुड़ के नबाना बड़ा औखा हो जाता है। इसलिए कम चीज़ों के अंदर कनाइज करें, कम चीज़ों को खाकर, कम चीज़ों को हम रख कर उसके अंदर ज़िंदगी बसर करें। ये भी एक हिकमत है कि अगर आप अपने घर को चलाना चाहते हैं तो आप जहाँ पर 1.5 किलो सब्जी पकानी है, उसे किलो पका लो, लेकिन हिकमत से चलें, हिकमत को पुकारें। खुदा को कहीं कि खुदावंद मुझे हिकमत देता कि मैं अपने घर को, मैं अपनी कलीसिया का बंदोबस्त कर सकूं। आए खुदावंद तू ऐसा कर कि वो हिकमत मुझे अता कर जो ऊपर से आती है। तो हिकमत के मतलब बहुत सारे आगे लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं इसके साथ ही अपने मैसेज को क्लोज करता हूँ कि उस हिकमत को मांगे जो यीशु मसीह में है। जब आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे तो आपके अंदर खुदा की तरफ से हिकमत आएगी। फिर लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, इज्जत करेंगे कि नहीं यह बंदा बड़ा चंगा है, यह चर्च जाता है, यह गीत गाता है, यह कुड़ी बड़ी चंगी, यह कलाम पढ़ती, यह गीत गाती है। फिर खुदा आपकी इज्जत करवाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर लोग भी आपके मतलब जब बातें करेंगे कि नहीं ये बंदा नहीं ठीक, तो फिर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं। तो हिकमत कहती है कि जो मुझसे मोहब्बत करेंगे वो मुझे पा लेंगे, और जब पा लेंगे तो मेरे साथ, मेरे नाल ही दौलत है। जो लोग दौलतमंद बनना चाहते हैं वो खुदा की हिकमत को मांगे जो आसमान से आती है, जो पाक हिकमत है। सो खुदा हमें ऐसी हिकमत अता करे ताकि हम अपने घरानों में, अपने तमाम दुनियादारी के लिहाज से ऐसी हिकमत से चलें ताकि हमारे तमाम घराने हमेशा तक महफूज रहें। सो खुदा आपको बरकत और सलामती दे। आमीन।